Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today, one Mr. Anuj has posted a comment that I have placed on this video. He is already working in EPFO, getting salary around 55,000, selected as PO in Punjab National Bank, where cost to company may be around 1 lakh. That means if he join as PO, he will be getting 45,000 rupees per month extra as salary plus other perks. That means if he does not join Punjab National Bank, his sacrifice is around 5.4 lakh per annum. Now, his question is, should he continue in EPFO or join PNB, and where his chances of giving time to future exams is more. So I am making this video to solicit more and more suggestions because you all are these days very intelligent. So give him suggestion, keeping in view few aspects. One, he may not be able to crack the same examination in future as competition is rising. So that is one risk. As on date, he has already cracked and got a job in hand. But in future, there is no guarantee because we have seen number of cases, the people, those who have refused these positions in earlier years could not crack these examination in subsequent years because every year competition is different. So this is one risk by not taking this assignment. Second, what are available exams before him that is better than bank PO but crackable? The most important thing is crackable because from his comment it is clear that he has not cleared at SBI PO. So he should always keep in mind the crackable exams while taking a decision. The age is with him. He is 22 years old. Many years are there. So risk reward is in his favor. So if he gamble out and go for a much higher post in the initial years, it will be highly rewarding. But at the same time, if he could not or he may not able to crack even the same examination that is bank PO, then what is his position? What is the promotion prospects in EPFO? Whether he should continue his life in EPFO? And should he go on taking a hit of around 5 to 6 lakhs per annum, spending over next 30 years of life? So this is risk reward scenario before him, and that's why I think he is confused. And since you all are very intelligent people, so I am raising this query through this video before a larger audience. Give your suggestion. And give your suggestion keeping in view the real dynamic of competition these days. Somebody may suggest go for RBI grade B. But whether RBI grade B is easily crackable because he could not clear SBI PO, as it seems, because he has not mentioned that he is qualified SBI PO. So we have to keep in view the level of competitions, the level of opportunities that may arise in future, and risk reward before taking a decision. So give your opinion in comment column and help him. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मिस्टर अनुज ने एक कमेंट डाला है कि वो EPFO में कार्यरत है, 55,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, उनका PNB में PO का सिलेक्शन हो गया. अब उनका पूछना ये है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए PNB PO. अगर हम आज PNB PO की पोजीशन देखें तो लगभग कॉस्ट टू कंपनी PNB को 1 लाख से अधिक है न्यू ज्वाइनिंग की, अगर हम उसकी ग्रॉस सैलरी प्लस अदर पर्क्स को ऐड करके देखें. तो यदि PNB PO ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो सेक्रीफाइस है प्रेजेंट सैलरी पे 45,000 रुपये महीने की या 5,40,000 पर एनम की सेक्रीफाइस है.
अब ऐसी स्थिति में हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ये हम अमाउंट फोरगो करते हैं तो कौन कौन से क्रैकेबल एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स नहीं, क्रैकेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चन किया है उसमें ये स्पष्ट लग रहा है मुझे, हो सकता है हो या ना हो, कि इनका SBI PO नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने IBPS PO के बारे में ही चर्चा की है। तो कौन कौन से और क्रैकेबल एग्ज़ाम्स हैं जिसको उनको फोकस करना चाहिए, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्शन की, ये भी उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि एक साल आपका PO का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, कई बार फ्यूचर ईयर्स में वो सेम एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होता है, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो ये भी एक दृष्टिकोण लेके चलना है कि इस साल हमारे पास एक ऑफ़र है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में ना भी हो हमारे पास। तो ये भी फैक्टर को आप देख लीजिए, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिस पे वो फोकस करना चाहिए। 22 साल इनकी उम्र है, उम्र इनके साथ है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये काफ़ी यंग है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। मगर सिर्फ इसके अंदर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसमें ये देखने वाली बात है कि अगर और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं ये आने वाले सालों में, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी आदमी श्योर नहीं हो सकता। कई बार एक मौका आता है, हम उसको हाथ से निकल जाने देते हैं, कई बार दोबारा नहीं आता। क्योंकि मैं तो काफ़ी कैंडिडेट से टच में हूँ, मेरे को काफ़ी लोग ऐसी बातें बताते हैं। तो इसीलिए मैं वाइडर ऑडियंस के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना विचार तो क्लियर है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आज कोई चीज़ हमें बेहतर मिल रही है, हमें चले जाना चाहिए। पर क्योंकि ये कैंडिडेट दुविधा में है और आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आप पूरा इसमें इन बातों को ध्यान में रख कर सजेस्ट करिए कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बिगर ऑप्शन के लिए जाएं और कोई कंपटीशन ना क्लियर हो आने वाले कई साल के अंदर, और उनको पूरे जीवन EPFO में भी व्यतीत करना पड़ सकता है। वहाँ प्रमोशंस बहुत शुरू हैं और काफ़ी लोग हैं जो EPFO ज्वाइन करने के बाद छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी टच में जो छोड़ के दोबारा बैंकिंग की तरफ आए हैं। ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जो बैंकिंग में थे, EPFO चले गए और फिर EPFO से वापस बैंक्स में भी आ गए हैं। तो हर तरह के लोग हैं। तो वाइडर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपका क्या विचार है, क्योंकि इस एज के अंदर कन्फ्यूज़न होना, और कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारे जब एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं तो कई बार हमें सूझता नहीं है क्या करें। तो इनकी समस्या बिल्कुल सही है और एक अच्छी राय अगर सब लोग मिलकर देंगे तो हो सकता है ये राइट डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।